حضرات، آج کی تاریخی نشست کے لیے جس ذات گرامی کے سر اور دا اسپیشل گیسٹ کا سہرا بالا گیا وہ دنیا علم و فن میں محتاج تعارف ہے، جس کی طویل ترین علمی خدمات اور دعوتی سرگرمیاں جس کا ایک باب ہے، جس کے دست تربیت نے ہزاروں سنگکاروں کو تلاش کا ہیرا بنا دیا۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ میرا اشارہ کلام جناب مولانا عمیر الصدیق ندوی صاحب کی طرف ہے۔ میں بخت احترام درخواست لے کر حاضر ہوں کہ محترم اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ انسان کے دل کی آواز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان بچوں کو شاباشی دیں۔ یقین نہیں آتا کہ اتنے چھوٹے بچے اتنی روانی کے ساتھ کلام پاک کی آیتیں اور حدیث شریف کو سنا رہے تھے۔ اتنے چھوٹے بچے، تصور دشوار ہے کہ کیسے ان کو تیار کیا گیا ہوگا۔ یہ جو تیاری ہوتی ہے بچوں کی، اصل چیز یہی ہے۔ اصل مظاہرہ جو ہے اپنی کارکردگی کا، اپنی پرورش کا، اپنی تربیت کا، اپنی تعلیم کا۔ اگر کوئی دکھانا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے ایک مثال پیش کرنا چاہتے ہیں آپ، تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ نے جو اسکول کھولا، جو مدرسہ کھولا، اس میں آپ نے کتنی محنت کی، اس کا حساب صرف زبانی ہم آئیں اور تعریف کر دیں، کوئی آئے اور تعریف کر دیں، یا خود اسکول کھولنے والے اپنی تعریف کر دیں، کوئی اس کے معنی نہیں ہے۔ معنی تب پیدا ہوتے ہیں جب آپ کی محنت، آپ کی کارکردگی، آپ کی تربیت اور آپ کے جو سوچنے کا انداز ہے۔ اسکول کھولا کیوں؟ ایک تعلیم گاہ کا بہت سی تعلیم گاہوں میں اضافہ کیا کیوں؟ یہ جو ہماری خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، جن کے بچے، جن کے عزیز یہاں سامنے آئے، ہم بیٹھے بیٹھے ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی کہ یہ اتنی چھوٹی بچی اور اس طریقے سے وہ کلام پاک کی آیتیں اتنے اعتماد سے اور صحیح طریقے سے پڑھ رہی ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات جو ہے کہ شکریہ کے مستحق ہیں ہمارے یہ بچے، اور ان سے بڑھ کر ان کے ماں باپ، اور ظاہر ہے کہ سب سے بڑھ کر ان کے وہ استاد اور ٹیچر جنہوں نے یہ محنت کی۔ اب معاملہ یہی ہے، آپ کے سامنے بہت سی باتیں آئیں کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے۔ ارے بھائی، مسلمان کے لیے تعلیم کی اہمیت کا کہنا ایسی ہے جیسے کسی زندہ انسان کے لیے کہا جائے کہ اس کے لیے پانی اور ہوا کی کتنی اہمیت۔ پانی اور ہوا کی اہمیت بتائی نہیں جاتی، وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، وہ نہیں تو ہم نہیں، زندگی نہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کے لیے اگر تعلیم نہیں تو پھر وہ مسلمان نہیں۔ ایسے تھوڑی کہا گیا تھا کہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے تعلیم حاصل کرنا۔ ابھی ہم دیکھ رہے تھے بورڈ پہ عزم لکھا ہوا تھا، ہم نے کہا کہ عزم پہ بول دیں گے کہ بھائی ہمارے مفتی نیاز صاحب بھی آگے ہیں ماشاءاللہ۔ ہم نے کہا ایک چین ہے جو اعظم گڑھ سے لے کے اور سراغیر کے پھول تک پہنچی ہوئی ہے، یہ بے چین کی لوگوں کی ہے۔ ہمارے عارف صاحب، ہمارے ریحان صاحب، یہ لوگ یہاں پر موجود ہیں، تو اچھا لگتا ہے کہ یہ کس نسل کے نوجوان ہیں جنہوں نے کس چیز کی اہمیت کو سمجھا۔ آج سارا معاملہ یہ ہے کہ ہم قوم تو ہیں اور تعلیم بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ تعلیم کا رونا اعلیٰ تعلیم کا رونا ہے۔ ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ہمارے بچے پیچھے کیوں ہو جاتے ہیں، ڈراپ آؤٹ کیوں ہوتا ہے، وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ ہم نے ایک گفتگو میں کہا بھی تھا، پوچھنے والے سے کہا ہم نے کہ ایک آدمی تو رکشہ چلا رہا ہے، ایک آدمی تو ٹھیلا چلا رہا ہے، ایک آدمی تو چھوٹی چھوٹی دکان کر رہا ہے، بڑی مشکل سے اپنا پیٹ پال رہا ہے، وہ اپنے بچے کے لیے خواب کیسے دیکھ سکتا ہے؟ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ خواب دیکھنا بہت اچھی چیز ہے، بڑے اس کے آسمانوں کی روانوں کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن آنکھیں ہونی چاہیے خواب دیکھنے کے لیے۔ خواب بھی تو کہیں ہونے چاہیے، نیند تو ہو۔ جب نیند ہوتی ہے، آنکھوں میں نیند آئے گی تب کہیں ہم خواب دیکھ پائیں گے۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بالکل اعلیٰ تعلیم کے لیے آسان نہیں
अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आसपास का एरिया है जिसे यूं देखने में बड़ा शादाब है, सरसब्ज है, हवाएं आ रही थी, हम कह रहे थे कि ऐसे ही बाले बयाबानी होती है जो सरमस्ती देती है, जो दिलावजी देती है, जो रानाई देती है, जो जीने की उमंग देती है। ये सारा माहौल जो है ये बताता है कि कैसे कैसे खेत उगाए जाते हैं और कैसे उससे गल्ला और फल निकाले जाते हैं। ये कुदरत की तरफ से आपके सामने एक पैगाम है। मेहनत करो, वो मेहनत करने के लिए जिस तरीके से यहाँ पर इस स्कूल ने जो काम किया है, हम पहले इसके पहले बिल्कुल इंतजारी जैसे में आए एक बार जब इसका कहीं और आज कई सालों के बाद जब देख रहे हैं तो खुशी होती है। ये वो जमीन है, वो इलाका है कि अगर आप अपने माजी से वाकिफ हो जाए, अपनी तारीफ से वाकिफ हो जाए, अपने उन असलाफ से वाकिफ किए हम औलादे हैं, तो मालूम हो कि इस जमीन ने कैसे कैसे लोगों को जन्म दिया है, इस मिट्टी से कैसे कैसे लोग उठे। फिर आज शिकवा क्या है, किस बात पे शिकवा है? हमारी तरक्की अपनी जगह मुसल्लम है, हमारा पिछड़ापन अपनी जगह मुसल्लम है, हमारी बेइज्जतियां, हमारी गुरूखर्चियां, हमारी असल मसाइल से हमारी चश्मोशियां, ये अपनी जगह मुसल्लम। कोई बताने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं कि हम क्या कहा रहे हैं, क्या दिखा जा रहा है, हमारी किस्मतों के फैसले क्या हो रहे हैं, आसमानों में क्या क्या दिखा जा रहा है। इसका अंदाजा जो कर गया तो वही है सर सैयद ने इसका अंदाजा एक वक्त किया था जब वो खाक और खून को समझ नहीं पा रहे थे कि खून ज्यादा है या खाक ज्यादा है। उस वक्त सर सैयद ने जो बेड़ा उठाया था, वो जो रात पाया था, वो ये था कि कौन अगर अपनी अल्लाह ने रखा तो हासिल करेगी, तरक्की करेगी, आसमानों को छुएगी, अपना वजूद साबित करेगी, अपनी अहमियत जाहिर करेगी, इंसानों के लिए अपना वजूद मुबारक बनाने की उसके अंदर एक कोशिश होगी। वो सिर्फ और सिर्फ तालीम के जरिए, तालीम को बाकी मत, ये तालीम ये तालीम हो, तालीम का मतलब सिर्फ ये है। कलाम पाक में भी बच्चियां पढ़ रही थी, एक जगह आया है कि जो इल्म वाले हैं वो अल्लाह से दिल से डरते हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। ये क्या है? इल्म की जो सबसे बड़ी देन है, जो सबसे बड़ा तोहफा है, जो सबसे बड़ी कामयाबी है, वो ये है कि हम अपने पैदा करने वाले को पहचान लें, उसको समझ सके, अपने रब की जिसको मार्फत हासिल हो जाएगी उसको अपनी मार्फत हासिल होगी। और जिस दिन हम अपने आप को पहचान लेंगे तो उस दिन ये जो आत्म का जो लफ्ज दिया है, हमारे न्याज साहब ने बात दिया था, जुस्तजू, ये आज़म, ये आसमानों से आगे, ये तारों से आगे, ये जो हमको एक उन्वान दिए जाते हैं, ये सिर्फ इसलिए है कि हम अपने आप को बेदार करें। बहुत मुबारकबाद मुस्तैद हैं हमारे इस अमीन स्कूल अमीन के जो जिम्मेदार हैं, वो बिल्कुल नौजवान हैं, लेकिन जो इनके अंदर जो एक नियत है, इनके अंदर जो एक पाक नियत है, एक तड़प, नियत से कुछ नहीं होता है, नियत के साथ साथ तड़प हो, तड़प के साथ तड़प। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप अपने बच्चे को बनाना चाहती है कि वो बड़ा आदमी बन जाए, कामयाब इंसान बन जाए, ये हुई ये नियत है। तलब ये होती है कि अब कहीं न कहीं से उसका इंतजाम किया जाए, कहीं वो कुछ कर सके, लेकिन उसके आगे जो मुकाम है वो तड़प का। जब तड़प पैदा हो जाएगी हमारे गाँव के बीच के सीनों में और हमारे मर्दों के जहनों में, जब ये तड़प पैदा हो जाए कि हमारा बच्चा आगे चल के पूरी इंसानियत का मौसिन बन जाए, पूरी इंसानियत का मौसिन बन जाए, इंसान को इंसान बनाने वाला बन जाए, तो जिस दिन ये तड़प पैदा हो जाती है ना, उस दिन फिर हम हमारी आंखें जब बंद होने लगती है तो हमको इत्मीनान रहता है कि हम कुछ कर भी जा रहे हैं। अपने रब के हुजूर जाएंगे तो कहीं न कहीं हमारी कोई न कोई कोशिश हमारे मोहब्बत का सामान बन जाएगी। इस लिहाज से ये अब्द का जो पैगाम है, और अभी हमने देखा हुआ है इन्नी लकुम नासिहुन अमीन, अमीन की निस्बत आपने अपने किसी बुजुर्ग से की, लेकिन क्या अजीब इत्तेफाक है, हुस्न इत्तेफाक है कि जो दुनिया में जो सबसे बड़े इल्म के पैगाम्बर थे, पैगंबर,
जिनका काम इल्म के साथ साथ तरबियत करना, तरबियत के साथ साथ दिलों को धो देना था, जिनको हम अंबिया किराम कहते हैं। हर नबी की ज़बान पर एक लफ्ज आया अपने कौम के सामने कि हम तुझसे कुछ मांगते नहीं, ला असअलुकुम अलैहि अजरा, ला असअलुकुम अलैहि माला, हम तुझसे कोई बदला नहीं चाहते, हम तुझसे कोई माल दौलत नहीं चाहते। इन्नी लकुम नासिहुन अमीन, लोगों सुन लो कि मैं तुम्हारे लिए खैरख्वाह हूँ और अमानतदार। ये इत्तेफाक है कि अल-अमीन का लफ्ज यहाँ पर है, ये पैगंबर की पहचान है, इसलिए कि खैरख्वाही और खैरख्वाही अमानतदारी के साथ, बेईमानी के साथ नहीं। हर खैरख्वाही तब काबिल कबूल होगी अल्लाह के यहाँ जब उसके अंदर अमानतदारी होगी। और अमानत ये है कि हमने बच्चों की तरबियत का जो जिम्मा लिया है, हमने उनके वालिदैन से जो वादा किया है, उस वादे में हम 100% पूरे सच्चे उतरते हैं। एक शक्ल सामने आई है जिस बच्चे हम तो हैरान थे कि अल्लाह ये इतने छोटे बच्चे कितनी खूबसूरती से उस मेहनत को जाहिर कर रहे हैं जिस मेहनत के ऊपर उनकी मेहनत की गई। भाई बहुत से स्कूल हैं और हर स्कूल के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ने हर स्कूल को कामयाब करे, हर जगह खैरख्वाही हो, हर जगह अमानतदारी हो। लेकिन आपके दरमियान में आकर और ये जो मंजर देखा है, तो कहीं भी और भी इससे पहले भी अल्लाह का करम है कि मौका मिलता है यहाँ से लेके बहरे अरब तक एक आबादी, और हम उसका जिक्र अक्सर किया करते हैं कि भटकल की आबादी है। काश कि वहाँ कोई लोग जाके देखें अपनी आंखों से कि उन्होंने क्या मेहनत की और उस मेहनत का क्या फल मिला है। आप लगेगा कि आप उसे इल्म के और इखलाक के और आमाल के, पाकीज़गी आमाल के की जन्नत में आ गए भटकल के अंदर। और अल्लाह ने सब दे दिया, इल्म के तुफैल में उनको सब दे दिया है। अगर इल्म को हासिल करना है पैसा कमाने के लिए तो समझ लीजिए कि उसमें कहीं फूल लग जाएगा, और अगर इल्म को हासिल करना है, इल्म की दौलत को आम करने के लिए, तो अल्लाह ताला के यहाँ ज़ाहिरी और बातिनी सारी दौलतों के खजाने खुल जाएंगे। ये तय है। ये बात अभी बात हो रही थी हमारे आरिफ साहब, उन्होंने कहा कि हमने बच्चों के लिए छोटी छोटी कहानियां बच्चों के लिए लिखी। ये हमारे वो दिल की आवाज है हमारी, जो भटकल में हमने सबसे पहले कहा था कि खुदा के वास्ते अपने बच्चों को अपनी जबान से जोड़ो। माँ हो तो मादरी जबान का तोहफा दो। तुम जो जबान बोल रही हो, तुम जो जबान लिख रही हो, जिस जबान में सोचती हो, खुदा के वास्ते इस जबान का रिश्ता माँ का जो बेटे से रिश्ता है, वही जबान का मादरी जबान का बच्चों से रिश्ता। इस रिश्ते को मत तोड़ो, खत्म हो जाओगे सब के सब। अगर मादरी जबान को हमने तर्क किया तो आज जो अंजाम देख रहे हैं कि ये किताबें लिखी जा रही हैं, पढ़े को, ये सब के लिए हैं। लेकिन हमारे बच्चे सारी जबानें जानने लगे हैं। सारी का मतलब हिंदी है और इंग्लिश है वगैरह वगैरह। बहुत से बच्चे तो संस्कृत भी ले रहे हैं, आगे पढ़ने के लिए अरबी फारसी भी लेते हैं। लेकिन माँ की जबान कहाँ चली गई? जहां हम जिस जबान में हम सोचते हैं और जिस जबान में हम ख्वाबों को देखते हैं। कभी सोचिए इन बातों को। कैसे कैसे आज इकबाल के शेर लगता था कि रूह को झिझोड़ रहे हैं। तुम दिए क्या है बादे बयाबानी, ये तुम दिए बादे बयाबानी क्या कौन समझता है, कौन समझेगा ये क्या है? हम जब बैठे तो कभी अपना जायजा लें कि बहैसियत कौम के, बहैसियत दुनिया की खैर उम्मत के एक फर्द होने के, दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत कौन कही गई, हमको बताया गया। कभी जायजा तो लें कि हमने इस मेयार को कहां तक कायम रखा। आज हिजाब के ऊपर बड़ी बहुत जबरदस्त एक बचा हुआ है, गदर बचा हुआ है, लोगों की आंखों से आंसू भी आ रहे हैं। लेकिन हमने भी वो हिजाब देखा है कि आजमगढ़ के स्टेशन तक तो पर्दा है, लेकिन शाहगंज के बाद फिर वो जब अलीगढ़ के लिए सफर होते हैं तो सारे बोलते थे वो बेगों में रख दिया। हिजाब जो है, जिसे बच्चियों ने कहा
कि हिजाब जो है वो हमारी पहचान है, हमारी इज्जत आबरू, हमारी हिफाजत, इसकी पहचान है हिजाब। हिजाब को सिर्फ रस्म न बनाइए, हिजाब को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा आइडियल मानिए। तो शायद अगर ये हमने किया होता बहुत जुलूस के साथ, तो आज ये हश्र देखना नहीं पड़ता। अभी वक्त है, इस किस्म के जो जलसे होते हैं, ये जलसे सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम आए और तालीम की अहमियत और तरबियत की अहमियत और कुछ तारीफ मानी मदरसा की और कुछ आप इसकी तारीफ के बहुत उम्दा। नहीं भाई, ये अल्लाह का मौका है, मिलता है अल्लाह की तरफ से कि जरा गौर करें, कुछ देर के लिए सोचें। ये हमारी जो घरों की जो मलकाएं हैं, ये खाने से, कपड़े से, जेवर से और रस्म रवाज के बंधनों से जरा से हट के कुछ सोचें कि कल आने वाला कल क्या तकाजा कर रहा है। असल मामला ये है, इसलिए ये किताबें जो हैं, ये किताबें ये हमारे बचपन में हमको खूब याद है, जमात इस्लामी वालों की तरफ से माइल खैराबादी की कितनी किताबें हम लोगों ने पढ़ी, गाँव वाले, बाप वाले, बना वाले, ये मजा आता था पढ़ने में। आज हमारे बच्चे महरूम हो, इसलिए कि हमने कुछ और उनके लिए मंजिलें मुकर्रर कर दी। उन मंजिलों में कहीं किसी मोड़ पर इस किस्म की कहानियां दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए ये बहुत अच्छा मौका है कि इस मौके पर आप हम तो कहते हैं कि आजमगढ़ वो खिलता है कि यहाँ के गांव में बच्चों की लाइब्रेरी, बड़ों की छोड़ी, बड़ों की तो शिबली अकेडमी की लाइब्रेरी पूरी दुनिया में मशहूर है। बच्चों की लाइब्रेरी हो, बच्चों के मिजाज के लिहाज से हो, उसमें रंग हो, उसमें फूल हो, उसमें तितली हो और उसमें जो अलमारियां हो वो भी जो बच्चों के जहन को अपनी तरफ मुतवज्जह करें और उन बच्चों को लाया जाए, बैठाया जाए और इस किस्म की किताबों को, खूबसूरत किताबों को उनके हाथ में दिया जाए। उनको इनाम दिया जाए कि किस बच्चे ने कितनी किताबें पढ़ी, कितना पढ़ा, अच्छा बताओ तुमने क्या पढ़ा, जो ज्यादा सही जवाब दे उसको इनाम दिया जाए। जब तक कि ये काम नहीं होगा, किताब कहाँ है मगर साहिब किताब नहीं, साहिब किताब बनना है। अभी एक हमारे भाई ने ये दिया हिलाली कायदा, कितने कायदे आए, दुरानी कायदा, मरदानी कायदा, कितने कायदे मुरतब किए गए, लेकिन इन लोगों को अल्लाह ने एक मेहनत का एक सलीका दिया। उन्होंने ये किया कि एक हिलाली कायदा बना दिया। सैफुद्दीन साहब की चांदपट्टी के हैं, इसे हिलाली कायदा बना दिया। अगर बगदादी हो सकता है तो हिलाली क्यों नहीं हो सकता? और कितने खूबसूरती से, अगर ये हमारी माएँ जो हैं अपने बच्चों को 2 साल 3 साल के बच्चों को अगर ये बताया, उतनी आसानी से बताया गया है कि 2-3 महीने में वो कुरान शरीफ आराम से पढ़ लेंगे। इन चीज़ों को तो सोचने की, देखने की ज़रूरत है। मैं ये मौका मिल गया अच्छा कि इनका ये भी हो जाए, दिल की बातें हैं, वरना आपको जो सफ़र है ना, उस सफ़र की जो अगली मंजिलें हैं उनके तसव्वुर से वहशत हो रही। आप सही है, आप लोग मुस्बत सोचते हैं, अभी आपको बड़ा हौसला है कि नहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन जिनकी निगाहें तारीख पर हैं वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या क्या हो रहा है। जब तक रहोगे तो मिट जाओगे, लेकिन हिंदुस्तान वालों तुम्हारी दास्तां कभी ना होगी दास्तानों में। ये बात इकबाल ने कही थी, जिसके अशार आज सुबह से आप समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। और अगर इतने लोग सोच लें तो समझिए कि हमारी कामयाबी पक्की हो चुकी है। हमारा पैसा, हमारी मेहनत, हमारे खेत पार, हमारे माल दौलत, इन सब का हिस्सा ज़कात वह है क्या? ज़कात ये नहीं है कि आपने कुछ टैक्स निकाल दिया। ज़कात ये है कि जो बचे आपकी कमाई से वो अल्लाह के बंदों के लिए तैयार किया जाए कि वो इस लायक बने कि वो औरों के लिए रहनुमा बन जाए, औरों को देने वाले बन जाए। ये सारी बातें हैं। इस मौके से पता नहीं सही है कि गलत है, आपको समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही है, आप मुत्तफिक है कि नहीं है, लेकिन इस स्टेज पर आकर ईमानदारी का तकाजा यही है कि जो बातें हमारे दिल में हैं और जब इस किस्म की चीज़ों को देख लेते हैं तो वो जज्बे कुछ और कुछ बेकाबू से हो जाते हैं। उन बातों को कह दिया, अगर बुरा लगे तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन एक अपील ज़रूर है कि अगर अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज देखना चाहते हैं, खुदा के वास्ते जरा से अपनी ज़िंदगियों की जो रविश है अब तक की, उसको बदलने का काम करें, बदलने की सोचें। और उस बदलाव में सबसे बुनियादी चीज़ है बेहतरीन तालीम, दीनी तालीम, असली तालीम और उसके साथ साथ वो तरबियत जो तालीम को तालीम
सही मानों में तालीम बनाती है। तरबियत के बगैर तालीम कुछ नहीं। सर सैयद ने कहा था, पहले दिन कहा था कि तालीम यह है कि तुम्हारे अंदर की जितनी सलाहियतें हैं उनको अगर वो तालीम निकालने में कामयाब है तो तालीम है। लोगों ने देखा, 150 साल से देख ही रहे हैं कि एक इदारा है तो उसने कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अपनी जिम्मेदारियां अदा की। आपके बच्चे हैं, कल को पता नहीं इनके अल्लाह ने क्या मुकद्दर किया हो, इस तालीम की दौलत के ज़रिए वो क्या से क्या बन जाए, इसकी दुआ करनी चाहिए। हमारे भाई ने कहा था कि कुर्रतु आयुन, आँखों की ठंडक। हमारे कुरान ने हम अपने वालिदैन को ये दुआ सिखाई कि ऐ रब हमारे बच्चों को हमारे लिए आँखों की ठंडक बना दे। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रत आयुन। और कैरियर कहाँ पहुँचाए, वो जअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह से जो डरने वाले जो मखलूक है, जो उम्मत है, उसके बच्चों को इमाम बना दो। ये है कामयाबी। ये दुआ हर एक की ज़बान पर होनी चाहिए कि ऐ हमारे रब हमारे बच्चों को हमारे लिए आँखों की ठंडक बना। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल की आँखों की ठंडक नमाज में थी, हमारे लिए हमारे बच्चों के लिए ये ठंडक रखी गई है। इन बातों को सोचने समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ने मौका दिया तो आपके सामने कह दिया। और फिर एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया। और दुआएँ तो दिल से हैं भाई, दुआ तो दिल से है कि जहाँ पर जिन अंधेरों में एक भी कोई क्षमा जला रहा है, हम उसके एहसानमंद हैं। ये क्षमा जल रही है, आसपास के माहौल को रोशन कर रही है। खुदा करे ये उजाले बढ़ते जाएं तो ये तारीकियाँ छटती जाएं, हमारे बच्चे अपने असल रूप में दुनिया के सामने आएँ। वाखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।